Welcome students. In this video I am going to discuss the use of with statement used to process a file in Python. Now children, you have already seen how to process a file using open function, means you use open function for opening the file, then you use to process the file, and after that you use to close the file. Now here is a very compact method of processing a file which is done using with statement of Python. So let us see what this statement is about. With statement is a compact statement of Python that combines opening, processing and closing of the associated file along with inbuilt exceptional handling. Now see, आप अभी तक जो प्रोग्राम बनाते थे उसमें फाइल ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज करते थे, फिर उसके बाद फाइल को प्रोसेस करते थे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी यूज टू क्लोज द फाइल. और अगर हमने क्लोज नहीं किया फाइल को और अगर हम उस पे राइटिंग करवा रहे हैं, मतलब फाइल पे हम राइटिंग करवा रहे हैं और फाइल को क्लोज नहीं किया, तो क्या होता था, डेटा बफर में ही रुक जाता था और फाइल पे तब तक नहीं लिखता था जब तक कि आपने क्लोज फंक्शन या फ्लश फंक्शन को इन्वोक नहीं किया. ठीक है, तो ये जो विद स्टेटमेंट है, इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ पाइथन विच डज ऑल these three works in a single statement. Okay, now see how it does. And one more thing is there, that it handles the exceptional situations also at the same time. See what is the syntax. You write with, then you write open. Open is again the function with the help of which you open the file, and what all you need to pass in this, file name and file mode. File name is the name of the file which you want to open, and file mode is the purpose for which you are opening the file, and where you write the file handle, here. Okay, so see the syntax very properly. With, then you write this much, then you write as, and then you write the file handle name, and then you put a colon. After colon, you know that indentation has to be there. Now remember that this is not a loop, this is not any loop, just like your while loop, right? It is just simply a statement, and since it has a block, so the statements inside this block must be at a different level of indentation. Okay, so notice this indentation here. Now whatever processing you want to do, you process the file just like you were doing till now. ठीक है, आप उसको प्रोसेस करिए, और जैसे ही आप प्रोसेसिंग फिनिश करेंगे, मतलब आपके लास्ट स्टेटमेंट के साथ प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी और फिर ये फाइल को अपने आप क्लोज कर देगा. हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो जो फाइल आपने ओपन की है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. इवन इफ एनी एक्सेप्शनल सिचुएशन अकर्स, आप जानते हैं ना कि कभी कभी हमारे जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से एब्रप्टली हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को ये खुद हैंडल कर लेगा और आपको आपके फाइल को क्लोज करके ही प्रोग्राम को एंड करेगा. तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम का ये अवॉइड करता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी. So you remember this syntax very properly. Okay children, now see the advantages. It guarantees automatic closing of the file even if exception occurs before the end of with block. मतलब चाहे आपने ये तीन स्टेटमेंट सपोज लिख रखे हैं और आपके पहले ही स्टेटमेंट के बाद सपोज कोई एक्सेप्शन रेज हो जाता है, तो ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ प्रोग्राम का, लेकिन ये एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने देगा. ये कुछ भी करके एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और उसके बाद ये फाइल को क्लोज करके आपके प्रोग्राम को एंड करेगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस विद स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज इट हैंडल्स द एक्सेप्शन ऑन इट्स ओन एंड देन क्लोजेस द फाइल. जस्ट लाइक आई टोल्ड, ये एक्सेप्शन को पहले हैंडल करेगा और उसके बाद फाइल को क्लोज करके ही प्रोग्राम एंड करेगा. And it reduces the length of the code also. Obviously, जब सब कुछ compact है, एक ही statement के अंदर हो जा रहा है, तो length of the code will automatically decrease. So these are the advantages because of which we use with statement. Okay, and now I'm going to illustrate this
statement to you with the help of idle. So let us just close this presentation and I am switching over to idle. Sorry, it is taking some time. Okay, 2 windows are open, so I have closed first one. अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, न्यू फाइल बना रही हूं एंड इन दिस न्यू फाइल आई एम गोइंग टू यूज विद स्टेटमेंट टू प्रोसेस अ फाइल. तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे विद एंड देन ओपन. अब आपको जिस फाइल को ओपन करना है, सपोज आपको एक नई फाइल बनानी है, सपोज subject sub.txt in which you are going to write some subject names. Okay, so since you are opening this file for writing, so write the mode also. उसके बाद हम लिखते हैं as और फिर हम लिखते हैं फाइल हैंडल का नाम. So suppose I give the file handle name as f. ठीक है, अब अपने आप इंडेंटेशन छूट जाएगा. अब इसके बाद देखिए क्या करना है, f.write. अब आप इससे जो लिखवाना चाहते हैं, तो सपोज यू वांट टू राइट फिजिक्स. ओके, उसके बाद लाइन चेंज भी करा दे क्योंकि राइट फंक्शन अपने आप लाइन चेंज नहीं करता है. फिर मैं नेक्स्ट लिख देती हूं f.write केमिस्ट्री. अब देखिए यहां पे एक चीज आप नोटिस करिए, आपको मैंने जब राइट और राइट लाइंस फंक्शन का इलस्ट्रेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे या फ्लश नहीं करेंगे तब तक के डेटा बफर में रह जाएगा. लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक स्टेटमेंट में राइट लाइंस के हेल्प से भी लिख दे रही हूँ राइट लाइंस. लेकिन याद रखिए कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये सिर्फ स्ट्रिंग्स लिखते हैं. ठीक है, तो इसमें मुझे एक लिस्ट देनी है. सो आई एम गिविंग सम नेम, सपोज ASD एंड ZXC. ये दोनों मैंने लिस्ट के फॉर्म में राइट लाइंस में दे दिया. अब मेरा प्रोसेसिंग ओवर हो चुका है. दिस इज माय प्रोग्राम. इफ यू वांट आप यूजर के लिए एक लाइन लिख दो, प्रिंट फाइल क्रिएटेड. ठीक है, और अब मैं देखिए मैंने क्लोज नहीं किया लेकिन तब भी मेरा डेटा फाइल पे जाएगा और ये फाइल क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, सो आई एम सेविंग इट एज temp4. ठीक है, एंड नाउ आई एम रनिंग दिस कोड. तो फाइल क्रिएटेड आउटपुट आ गया. लेट अस सी आर sub.txt फाइल. तो मैंने sub.txt फाइल ओपन कर रही हूं. मैंने कंट्रोल O प्रेस किया. सी आई डिड नॉट क्लोज द फाइल, स्टिल मेरा डेटा लिख गया. ठीक है, ना ही मैंने फ्लैश फंक्शन को कॉल किया, ना ही मैंने क्लोज फंक्शन को कॉल किया, तब भी मेरा डेटा यहाँ पे लिख गया. और मैंने राइट फंक्शन में तो लाइन चेंज करवाए थे लेकिन राइट लाइंस में मैंने स्ट्रिंग में लाइन चेंज नहीं लगाया था, इसलिए दोनों स्ट्रिंग एक ही लाइन पे आ गई. ठीक है, तो इस तरह से आप इस फंक्शन से राइटिंग करवा सकते हैं और मतलब इस स्टेटमेंट से. इन द सेम वे यू कैन रीड द कंटेंट ऑल्सो. हम एक नई फाइल ओपन करते हैं और इसमें लिख रही हूं विद ओपन. अभी जो मैंने फाइल क्रिएट की है मैं उसी का डेटा रीड करने जा रही हूं. तो sub.txt और रीड मोड वैसे तो मेरा डिफॉल्ट मोड होता है बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट. ठीक है, और फिर हमने लिख दिया एज t. दिस टाइम मेरा फाइल हैंडल का नेम t है. तो रीड फंक्शन को यूज करने के लिए आई रोट t.read. पूरा कंटेंट में रीड कर रही हूं और प्रिंट करा दे रही हूं s को. ठीक है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है. अब यूजर के लिए आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हो या डेटा विल ऑलरेडी कम, सो आई एम जस्ट लीविंग इट. इसको सेव कर दें temp5. ठीक है, अब इसको रन कर रहे हैं F5. देखिए
मेरा डेटा रीड होके आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, यही कंटेंट मेरे फाइल पे लिखा था sub.txt पे। तो इस स्टेटमेंट से हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। मतलब आपको सिंपली यहाँ पे विद लिखना है, ओपन फंक्शन लिखना है, उसको दोनों पैरामीटर्स देने हैं, एज लिखना है, फिर फाइल हैंडल का नेम देना है। फाइल हैंडल का नेम आपने दिया और आपने टी डॉट रीड करके रीड किया कंटेंट और कंटेंट को प्रिंट कराया। तो वट एवर प्रोसेसिंग यू वांट टू डू आप कर सकते हैं और आपको फाइल क्लोज करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है तो ये खुद हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस विद स्टेटमेंट। एंड see you can see the length of the code is so short, तो इससे हम लेंथ ऑफ कोड भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write it in the comment section.